کا فضل اور اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو اور وہ اطمینان کی سمجھ آپ کو ملے۔ پولس رسول نے ہر خط میں اور اپنے سلام کے ساتھ اطمینان کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا جی؟ اطمینان کا۔ پولس رسول کو سمجھ آئی ہے اطمینان خدا ہے۔ اطمینان کیا ہے جی؟ خدا۔ اطمینان اطمینان لفظ نہیں، اطمینان نظریہ نہیں، بلکہ اطمینان خدا ہے، خدا ہے۔ اور دنیا کے مذہب، دنیا کی تعلیمیں، دنیا کے علم مذہب میں شامل کرتے ہیں۔ واحد عالمگیر مذہب ہے مسیحی جو ذات الہی میں شریک ہے۔ آپ ذات الہی کے شریک ہیں، آپ ذات الہی میں ہیں۔ جب بھی اپنا فیصلہ دیکھو، جب بھی اپنا معیار دیکھو، جب بھی اپنے آپ کو دیکھو تو پہلے ذات الہی میں دیکھو۔ میں آپ کے لیے یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے میرا بھائی، آپ کے ساتھ کتنے قیمتی وعدے کیے گئے نئے عہد نامہ میں۔ یہ دشان بھائی، یہ بہت پیارے بھائی ہیں جی، یہ روحانی آدمی ہیں، اکثر باتوں پر ڈسکس ہوتی رہتی ان کے ساتھ۔ آج کی تلاوت عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب نمبر ہے 8 اور آیت نمبر ہے 6۔ باب نمبر 8 آیت نمبر 6 پڑھنا چاہوں گا۔ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ آمین۔ بہتر وعدوں کی بنیاد پر، بنیاد کیا ہے جی؟ بہتر، اور ساتھ وعدے، بہتر وعدے اور بہتر بنیاد۔ نئے عہد کی کیا ہے جی؟ بہتر وعدے۔ وعدہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے جی۔ میں نے وہ وعدہ، آپ کے نوٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہے اچھی، اس پر ایک لفظ لکھا ہے، کسی کو یاد ہے کیا؟ حاملے خزاں کو وعدہ کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ جو ورلڈ بینک ہے نا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے جی۔ جب وعدہ زیب میں ہوگا تو کیا ہوگی؟ خوشی۔ جب وعدہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ شادمان ہوں گے۔ تو نئے عہد نے آپ سے پہلے وعدہ کیا، اور وعدہ کون سا کیا؟ قیمتی۔ 10 روپے والے نوٹ پر بھی وعدہ لکھا ہے، وہ قیمتی ہے۔ 10 روپے والا نوٹ جس پر وعدہ لکھا ہے وہ قیمتی ہے، وہ جتنی کا ویلیو آپ سمجھتے ہیں جی۔ 50 والا سمجھتے ہیں، 100 والا، 500 والے پر اپنی ویلیو، جیسا وعدہ ویسی ویلیو۔ تو اگر 5000 روپے والا نوٹ ہوتا، اس کی اگر آپ کو دیا جائے یا مجھے دیا جائے، ہاں 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 خوش ہو جائے، اس کی خوشی کچھ اور، کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ تو یہاں آپ کا بھی وعدہ کیا ہے جی؟ قیمتی۔ میں آپ کا وعدہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ شریعت میں سنیے، شریعت میں ایسا کوئی وعدہ نہیں جو عالم بالا پر آپ کو لے کر جائے۔ بے شک قیمتی وعدہ، میں موسوی شریعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا قیمتی وعدہ نہیں جو آپ کو کہاں لے کر جائے جی؟ عالم بالا پر، عالم بالا پر۔ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں گا، جوش سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہوش سے کہہ رہا ہوں، غلطی سے نہیں کہہ رہا، جان کر کہہ رہا ہوں، سمجھ لے کر خدا سے۔ مجھے خدا نے اس بات کی سمجھ دی، ان کے پاس زندگی کا وعدہ بھی نہیں تھا۔ بے شک ایسا اگر ان کے پاس زندگی ہوتی تو مرتے۔ یسوع نے خود کہا متی کی انجیل میں، انہوں نے روٹی کھائی مر گئے، اور وہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پھر یسوع نے کہا تم کتاب مقدس میں، کس میں جی؟ کتاب مقدس کس کو کہتے ہو؟ شریعت
नहीं जी नहीं। किताब मुकद्दस किसको कहते हो? शरीयत को। किताब मुकद्दस में तुम जिंदगी ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? किताब मुकद्दस में 5वें बाब की बात कर रहा हूँ यूहन्ना की इंजील में। किताब मुकद्दस में तुम जिंदगी ढूंढते हो मगर पाते नहीं, ढूंढते हैं पाते नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ किताब मुकद्दस मेरी बाबत गवाही देती है। मैं जानता हूँ किताब मुकद्दस मेरे लिए क्या करती है जी? गवाही देती है। और ज़िंदगी पाने के लिए तब मेरे पास आना नहीं चाहते। ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है, ज़िंदगी नए अहद में है। और नए अहद का वादा जो है, पहले बात करते हैं जलाल की, उस अहद के जलाल की और इस अहद के जलाल की। जी, मूसा कोई सीना पर गया क्या लेने? 10 हुक्म। जब वापस उतरा तो वहाँ जलाल था, बहुत जलाल था, कोई उस जलाल के आगे ठहर नहीं सकता था। किताब मुकद्दस में लिखा है कोई मेरा जलाल नहीं देख सकता। मूसा ने खुद भी कहा खुदावंद तू अपना जलाल मुझे दिखा। पीछे वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छी। खुदावंद अपना जलाल दिखा। उसने कहा तू मेरा जलाल, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। मुझे ये समझ मिली है जी, जलाल का लफ्ज़ जहाँ होगा उसके वहाँ ही मैनी होंगे। यहाँ जलाल का मैनी क्या है जी? चेहरा मानना पड़ेगा। उसने कहा तू अपना जलाल दिखा। खुदावंद खुद कह रहा है, यहोवा खुद कह रहा है। जो देखा जाए वो यहोवा होता है, जो देखा ना जाए वो एलोहीम होता है। जो देखा जाए वो खुदावंद और जो ना देखा जाए वो खुदा। तो उसने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, एलोहीम को तू नहीं देख सकता, खुदा को तू नहीं देख सकता। अगर देखा है तो खुदावंद को। खुदावंद का मतलब ही होता है देखा जाए, इसलिए यीशु को खुदावंद कहा गया। वो देखा गया, वो देखा गया। मैं देखना चाहता हूँ जी। आइए भाई जी, आप एक तिलावत करें जी, आ जाए। यहाँ बादशाही भी है इस वादे में जी। पहले जलाल की बात करते हैं, जलाल की बात जी। जी आइए मेरे साथ निकालिए इफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 11 ta 12। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्ज़ी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हों। आमीन। उसकी उम्मीद कब थी? पहले से। हम उम्मीद होती है जी जो चीज़ नज़र ना आए, होती है। उम्मीद क्या होती है जी? जो चीज़ नज़र ना आए तो वो क्या होती है जी? होती है। उम्मीद है जी, हमें उम्मीद है जी। वो चीज़ नज़र नहीं आती बल्कि होती है। जैसे कामरान भाई है जी, जब इसकी उम्मीद थी ये नज़र नहीं आता था। लोगों ने मिठाइयाँ खाई, लोगों ने मुबारकबादियाँ दी, उम्मीद थी ना, नज़र नहीं आता था। ऐसे ही यीशु मसीह नज़र नहीं आ रहा था, पहले से था। जब पहले था तो उसकी उम्मीद में कौन थे? हम थे। हम नज़र नहीं आ रहे थे। हम, ये बहुत रूहानी ख़त है जी। ये खुदा की हजूरी में जाकर इसको पढ़ें, सैकड़ों दफ़ा पढ़ें, इसकी समझ आएगी। हजूरी में जाकर क्या खुदा की सोचों की बात कर रहा है, खुदा के कलमा की बात कर रहा है। कहता खुदा के कलमे में, उसके इरादे में, उसकी सोचों में, उसके कलमे में मसीह भी था और हम मसीह में थे। मसीह भी था और हम मसीह भी था और हम कहाँ थे? मसीह में। कैसा वादा है जी? आप कहाँ थे? मसीह में। कैसा अहदा आपको आपका निस्मनामा दिखा रहे, आप कहाँ थे? नज़र नहीं आ रहे थे, आपका ज़ुहूर नहीं हुआ था, आप थे।
اور وہاں آپ کو ایک پروگرام دیا گیا. پروگرام کیا دیا گیا ہے جی؟ آپ نے جلال کی ستائش کرنی ہے. آپ نے اور جلال کی دولت بھی. کتنے دولت مند. اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے تو دولت مند ہے. جو دولت مند ہے اسے غریب کہتا ہے. جس کے پاس جلال کی دولت ہے وہ دولت مند ہے. اب جلال کی دولت ہے جی آپ کے پاس. آپ کے پاس کیا ہے جی؟ جلال کی دولت. اب اپنے جلال کا روح آپ کے پاس ہے. لکھا وہ جلال کا پطرس کے خط میں وہ جلال کا روح تجھ پر سایہ کرتا ہے. جلال. اور یہ جلال کون سا ہے؟ یہ وہ جلال ہے جہاں مسیح تھا, جہاں خدا تھا, جہاں روح القدس تھا. عالم بالا کا جلال ہے. عالم بالا سے جلال آیا ہے, آسمان سے آیا ہے. جلال اوپر سے نیچے آتا ہے. لوسیفر, ابلیس, شیطان, بدروہیں آپ کو, مسیحوں کو اور خادموں کو جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے, جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے, انہیں بدروہیں دیکھ کے کامتی کیوں ہیں؟ تھرتھراتی کیوں ہے؟ کامتی ہے. انہیں وہ جلال نظر آتا ہے. انہیں وہ جلال نظر آتا ہے. ہمیں نہیں وہ جلال نظر آتا, انہیں وہ جلال نظر آتا ہے. ہم تو ایمان سے یقین کریں. ہمارے پاس کون سا جلال ہے؟ وہ عالم بالا والا جلال جو خدا نے جلال پہنا ہوا ہے. کتنا قیمتی وعدہ ہے. اب رہی بات پہلے عہد کی, تو وہاں جلال تو تھا, جلال والا تھا. مجرم ٹھہرانے والا عہد جب جلال والا ہوا, روح والا جلال تو ضرور ہی, راست بازی والا جلال تو ضرور ہی. جب مجرم ٹھہرانے والا, پتھر کی تختیوں پر لکھے جانے والا عہد جلال والا, اس کا جلال فرق تھا. اب جلال کیا تھا؟ موسیٰ جب پہاڑ پر جاتا تھا, پہاڑ پر رہتا تھا تو جلال ہی جلال, چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا. جیسے ہی اس پہاڑ سے نیچے اترتا تھا تو جلال کیا ہوتا تھا؟ کم ہوتا تھا. کم ہونے کے سبب سے وہ اپنا ایسے سر ڈانپتا تھا. آج تک وہ اپنا سر ڈانپتے ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں, جب بھی, کیونکہ جلال کیا ہوتا ہے جی؟ گٹتا ہے. اور جلال گٹنے سے شرمندگی ہوتی ہے. آپ کے پاس نہایت قیمتی وعدہ ہے. آپ کا جب وعدہ قیمتی ہے تو آپ کا جلال گٹتا نہیں ہے جی. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اس جلال کی صورت میں تم درجہ با درجہ بڑھتے جاتے ہو. اس کے جلال میں کیا کرتے ہو؟ بدلتے اور بڑھتا ہے جلال. درجہ 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 بڑھ رہا ہے. کتنا بڑا؟ چہرے تک آ گیا. کیسی دعا کی ہے یسوع نے؟ جلال چہرے پر آ گیا. میں بشریت کی بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح اس وقت بشریت پر تھا. جب پہاڑ پر دعا کر رہا تھا تو پوشاک کیسی ہو گئی؟ برف کی مانند سفید, اور چہرہ آفتاب کی مانند چمکنے لگا. یہ بھی ایک دعا ہے, یہ نئے عہد کی دعا ہے. جلال چہرے پر آ جاتا ہے. جب چہرے پر آ جاتا ہے تو پھر منعکس ہوتا ہے. ہمارا جلال منعکس ہوتا ہے. بہتر وعدہ ہے. اب پرابلم ہے, بائبل نے یہ تعلیم دی ہے آپ کو یسوع نے جلال دیا, یسوع کو باپ نے جلال دیا, اور بیٹے نے ہمیں جلال دیا. ہم نے خدا کو دینا شروع کر دیا ہے نا. سننے میں تو یہی آتا ہے, خداوند تجھے جلال دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ خداوند تجھے جلال دیتے ہیں. بائبل میں ایسا نہیں ہے جی. بائبل میں لکھا ہے تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو کیونکہ آپ میں خوبی رکھ دی گئی. پطرس کے خط میں لکھا ہے خدا کی ساری خوبیاں ظاہر کرو. خدا کی ساری خوبیاں. اب جلال کو ظاہر کرو, لوگوں کو دکھاؤ. یہ ہم پر فرض ہے. یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے, روحانی کلیسیا کی ذمہ داری ہے, مسیح کی کلیسیا کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا ہے جی؟ جلال کیا کریں گے جی؟ جلال ظاہر کریں گے. جلال کیا کریں گے جی؟ دیں گے یا ظاہر کریں گے؟ ایک بھی بائبل میں حوالہ نہیں ملتا.
देने वाला बल्कि ज़ाहिर करने वाला, इसलिए तो दिया गया है आप ज़ाहिर कर सके, इसलिए आपको हुक्म भी मिल गया। सुन लें वो हुक्म वाले जो रट्टा डालते हैं, भाई हुक्म दो, वो भी सुन लें। उनके लिए कह रहा हूँ भाई, आपके पास नए अहद वालों के पास हुक्म है खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। फिर रही बात कीमती वादा, उनको बादशाही दी गई जी, मुल्कों की बादशाही दी गई। कहा गया अगर तेरी औलाद, सुनिए, तेरी औलाद मेरा हुक्म मानेंगी तो उन्हें मैं मुल्कों पर बादशाह बनाऊंगा, शहरों पर बादशाह बनाऊंगा, शहरों की बादशाही दूंगा। जिस रोज़ तेरी औलाद ने मेरा हुक्म ना माना तो उसे मैं तितर बितर कर दूंगा। बादशाही तो उनके पास भी थी, अब बेहतर बादशाही कौन सी है? क्योंकि वादा बेहतर है ना, वादा तो उनके साथ भी है बादशाही का, वो कर भी रहे हैं, वो दिशान भाई कर रहे हैं जी, बादशाही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पर बादशाही कर रहे हैं, हुकूमतों पर कर रहे हैं, कौमों पर कर रहे हैं, सब पर, हाँ जी, हर चीज़ों पर हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ बेहतर है जी, आपके अहद में बेहतर हुकूमत है। अगर वो अहद वाले हुकूमत कर सकते हैं, आपका तो वादा बेहतर है, उनके साथ बादशाही का वादा आपके साथ बेहतर कैसे है जी? सुनिए बेहतर कैसे हैं। उनके साथ आसमान की बादशाही का वादा नहीं है जी, ज़मीनी बादशाही का वादा, ज़मीनी मुल्कों की, इस सियारे की, जहाँ तक सूरज है वहाँ तक थी तो आपकी, जहाँ सूरज भी नहीं वहाँ आपकी बादशाही। कहानी जी, अब हम सोचेंगे भाई हम कैसे बादशाह, हम तो किराए पर रहते हैं, हम तो रक्षा चलाते हैं, हम तो कुछ और करते हैं जी, हम तो मजदूर हैं, हम तो ये हैं। भाई आप बादशाह नहीं, आपको बना दिया गया। आप बादशाह नहीं थे, आपको बादशाह बना दिया। कामरान भाई मकाशवा की किताब में पढ़ें आपके साथ क्या किया गया है। आपको, आप काहिन भी नहीं थे, आपको काहिन और बादशाह बना दिया गया ताकि ज़मीन पर बादशाही करो, आसमान पर बादशाही करो। ज़मीन और आसमान पर क्या करो जी? जी हाँ जी, 5:10 मकाशवा की किताब 5 बाब की किताब है, बाब नंबर 5 और आयत नंबर 10 से जी निकालिए। लिखा है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते। क्या किया जी? आमीन। आपको क्या किया जी? बना दिया गया। क्या बोलिए, आपको क्या बना कर दिया? मैं आपको बात बता देता हूँ, यस्सु के पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है। एक जगह पर वाक़या हुआ मत्ती की इंजील में, टैक्स देना है, दूसरे जाना है तो पैसे नहीं है। पतरस को कहता पैसे है, दूसरे कहता नहीं। कैशियर से पूछा यहूदा अस्करियों भाई पैसे है, उसने भी कहा नहीं। कैशियर के पास भी नहीं, दूसरे साथियों के पास भी नहीं। बेशक उसने कहा यस्सु को ऐसा बादशाह है, बादशाह को पैसा का पता होता है कहाँ होता है, बादशाहों को पैसा, रोना नहीं पैसे के लिए, ना 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 ना। आप बादशाह बनाए गए हैं। मैं जिस बादशाह ने, बादशाहों के बादशाह ने आपको बादशाह बनाया, उसे पता है पैसे कहाँ है। उसने कहा जा मछली के मुंह से निकाल लाओ। अब मछली के मुंह से निकालो पैसे, कैसे निकालोगे? मैं बताता हूँ, आप खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ जी कैसे मछली के मुंह से पैसे निकलेंगे। मछली ने मुंह बंद किया, जैसे पानी से बाहर निकलेगी तो मुंह क्या करेगी जी? बंद कर लेगी। अब क्या करना पड़ेगा जी? ऐसे, ये आंखें भी बाहर आ गई, मुंह भी खुल गया। हाँ जी। और भेजा किसको? पतरस को, जो माहिर था मछलियाँ पकड़ने चेहरा वाला। था ना, कैसे निकालना? भाई उसे पता है बादशाह को मछली के मुंह में पैसे हैं, तो टैक्स देने के लिए पैसे नहीं, तो फिर भी बादशाह नहीं था। बेशक बादशाह है। अब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, क्या बादशाह नहीं था? बादशाह है। अब वो चरनी में पैदा होगा जानवरों के पार, तो बादशाह नहीं है। बादशाह है। अब सर धरने के लिए उसके पास जगह नहीं है। लोमड़ियों के पास बट होते हैं, चिड़ियों के पास घोंसले होते हैं, इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं, बादशाह नहीं है। तो भी बादशाह है। तो भी अगर आप किराए पर हैं फिर भी बादशाह है, अगर आप अपने घर में हैं तो फिर भी बादशाह है। आप जिस भी हालत में हैं, क्योंकि कलाम में मुकद्दस ने आपको बादशाह ठहरा दिया, ये कबूल करना पड़ेगा, ये कबूल करना पड़ेगा। और बादशाही कौन सी जी?
आसमान की और तुम्हारे दरमियान में है। एक बादशाही है 1000 साला जो अपने 1000 साला बादशाही करनी है। एक है नादीदनी बादशाही जो आपके दरमियान में है। वो खाने पीने पर मकूफ नहीं, वो खाने पीने, वो रत्तों पर, वो बिल्डिंगों पर, वो चीज़ों पर नहीं है। वो बादशाही आपके दरमियान है। यूहन्ना ने पूछा, यूहन्ना ने अपने शागिर्द को भेजा, जाकर पूछो मसीह को क्या वो बादशाह तू है या किसी और की राह देखे। यीशु ने जवाब में कहा, जाकर उन्हें कहो अंधे बदरू हैं, बदरू हैं, भागती हैं, लंगड़े, बहरे, मुर्दे, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, अंधे भी देख रहे हैं, गूंगे भी बोल रहे हैं और बहरे भी सुन रहे हैं। बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और जिसकी हम मुनादी भी करते हैं, जिसकी हम गवाही भी देते हैं। यीशु ने जब नया अहद आया तो आसमान की मुनादी की, कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। छू कर देखो, वो आपके दरमियान है। यहाँ आपको बादशाह बनाकर भेजूंगा। आप क्या हैं जी? बादशाह। अब बादशाही करो। बादशाही करने से हमने एक रुख ले लिया, मांगो 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 मांगो, मांग 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 मांगते ही बन गए। मांगना चाहिए, बाइबल में लिखा है कि रुख है, तो ये भी रुख तो है ना। आप बादशाह हैं, आप बादशाही के लिए बनाए गए हैं। आप इरादे में थे, जो हमने तलावत की, आप खुदा के इरादे में थे, इरादे में थे, उसके प्लान में थे, उसके प्रोग्राम में थे। जब आप प्रोग्राम में थे तो उस प्रोग्राम में कहा ये जो रियाया होगी ना नए अहद की, ये बादशाह होगी। ये किसकी बादशाही करेंगे? आसमान की भी और ज़मीन की भी। आसमान पर आलम है, आप आलमों में बादशाह हैं। आप आसमान पर और भी रियाए हैं, आप उनके बादशाह हैं। और आसमान पर और भी मखलूक़ें हैं, आप उनके बादशाह हैं। आप के लिए एक हुक्म और है, वो क्या है? आप पर फ़र्ज़ है। इफ्सियों का ख़त 3 बाब, वहाँ लिखा उन आसमानी हुकूमत वालों को, आसमानी हुकूमत वालों को और इख्तियार वालों को, और क्या हो जाए जी? पढ़ दे 3 बाब की 10वीं आयत। इफ्सियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के वसीला से। हाँ जी, अब किसके वसीला से जी? कलीसिया के वसीला से। ये हुक्म किनके पास है जी? कलीसिया के पास। क्या करना है जी? खुदा की तरह तरह की हिकमत, खुदा की उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। कौन करे? पादरी? कौन? ये किसके लिए हुक्म है? क्या करना है? उन हुकूमत वालों को, उन इख्तियार वालों को जो कहाँ रहते हैं जी? आसमानी मकामों पर। उन्हें क्या बताना है? तरह तरह की हिकमत। कौन कौन सी हिकमत बताएंगे? मैं आपको एक हिकमत बताता हूँ जी। एक हिकमत है जी दुनिया की, जिसको बाइबल कहती है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी क्या कहती है जी? दुनिया की हिकमत क्या है जी? बेवकूफ़ी। तो अब आपने बतानी है जी आसमान की हिकमत। कौन सी जी? अब आसमान की हिकमत तो मैं जब भी देखता हूँ, जब भी आसमान की तरफ देखता हूँ, जब भी सोचता हूँ, जब भी हजूरी में जाता हूँ, मुझे जो हिकमत की समझ मिली है वो यीशु मसीह, जिसमें तमाम खुदा के ख़जाने पशीदा है। तमाम हिकमत उसमें पशीदा है। वो हिकमत है, अब बताना है भाई हमने मसीह को पहना हुआ है, जो आज भी पहनने जा रहे हैं जी। हमने मसीह को, ये किनको बताना है बहन? किसको बताना है? आसमानी मकामों पर जो बदरूहें हैं, जो तस्वीरें हैं, जो मोकल हैं। अच्छा, कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं मोकल, किधर है जी? हाँ इधर से आ गया जाओ। नहीं जी नहीं, उनको बताना है, हिकमत बतानी है। उन्हें रिश्तेदारी कर लेंगे, तेन कितों भेजा, किन्ने भेजा, क्यों भेजा, क्यों आया है, की लैन आया, इंज रिश्तेदारी पूछणगे पूरा डिटेल। भाई उन्हें हिकमत बतानी है। उन्हें हिकमत बताओ, तुम्हें सलीब पर शिकस्त हो गई, तुम रहलत कर गए, तुम नेस्तो नबूद हो गए, तुम फिर नहीं उठोगे,
तुम्हारी याद तक मिटा गई और तुम पर फतह आबी का शादियाना बजाया गया। और किसने बजाया? हमने। नहीं, हमने यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर हमने तुझ पर फतह आबी का शादियाना बजाया गया। मसीह के वसीला से हमने मौत को भी शिकस्त नेस्त कर दिया। मसीह में होकर हमने, मसीह में होकर हमने क्या किया जी? मौत को भी नेस्त कर दिया, फिर बदरूहों को भी नेस्त कर दिया। फिर कहा ऐ शैतान हम तुझ पर गलबा, आप तो गलबा आए हैं जी। बादशाह ने बनाया जाता है जिनको गलबा दिलाया जाए। आपको गलबा दिलाया गया मौत पर, शरीयत पर और शरीयत के ज़ाब्तों पर और तमाम अबलीस की शरारतों पर, अबलीस के कामों पर। खुदा का बेटा आ गया, उसने हमें समझ बख्शी ताकि शैतान के सब कामों को नेस्त किया जाए। आपका काम है हिकमत बताना, भाई तुझे नेस्त कर दिया, तू फना हो गया है, रहलत कर गया। रहलत का मतलब फिर कभी ना उठेगा। नेस्तो नबूद कर दिया, मिटा ही डाला। अब बदरूहों को कह दें आपको मिटा दिया है, आप कुछ नहीं है। ये नहीं है डर जाना है, आपने ये बताना है भाई नहीं, मुझे ये बताएं खुदा आपके साथ होता है? कैसा वादा है? उनको कहा गया था तुम्हारे साथ चलेगा, है ना? तो आपको क्या गया? तुम्हारे अंदर होकर तुम्हारे साथ है। हर वक्त आपके वो साथ है, हर वक्त आपके पास है। जब हर वक्त वो पास है, उसने जलाल को पहना है। हर वक्त आपके पास जलाल है, उसने हिकमत है उसके पास। हर वक्त आपके पास हिकमत है, उसके पास हजूरी है। हर वक्त आपके पास हजूरी है। अब आपने कबूल करना है, हजूरी में बढ़ना है। ये आपका हुक्म है, आपका वादा ही अजीब। बहुत सारे वादे हैं जी, अभी तो मैंने 2 बताए हैं। 3 बताए या 2? 3 बताए। बेशुमार वादे हैं जी। और वो कहते हैं 365 वादे, 665 वादे हैं जी, तो आपके इससे भी ज़्यादा है। हर वादा ही है। देखो तो वादा ही है, मैं तुम्हें यतीम, मैं तुम्हें अकेला, 12 कबीलों के तुम और आलमे बाला पर तुम बिठाए गए हो। तुम्हारे तो वादे ही बड़े आसमानी हैं, आपकी हर चीज़ आसमानी। तलीम आपकी मोहब्बत भी अलग है। उनकी मोहब्बत देखिए कैसी थी। लिखा गया था, पहलों से कहा गया था पड़ोसियों से क्या कर, और अपने सताने वाले के लिए ना अदावत रख। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रख और अपने सताने वाले के लिए दुआ कर, बरकत चाह। क्योंकि हमारे अंदर जो मोहब्बत है, उस रूह के वसीला से खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ वो रूह की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। उस रूह के वसीला से वो मोहब्बत की खूबी हमारे दिलों में डाल दी गई है। वो खूबी आप में रख दी गई है। उन्होंने करनी थी, आप में रख दी गई है। आप अपने ज़ाहिर करनी है मोहब्बत। इससे लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ इसको 2 हिस्से करते हैं, क्योंकि 12 बजे आप